The entire chapter is there according to NCERT, that is page number 103 to 124. Plus, you have the reference material which is going to tell you about Democratic Resurgence 2 and 3, that is about Jai Prakash Narayan and all others. So you have to read the chapter entirely along with the reference material, or else it is there in your notes also, but yet I'm telling you. Now, this is actually a very, I can say, interesting chapter, because in our entire history of political science, in the entire history of our politics of government of India, अगर हम लोग लॉकडाउन को लेकर चलते हैं तो दैट वाज विच वाज द वन विच सॉ कंप्लीट चेंज. वो एक सोशल रिक्वायरमेंट था, that was for the well-being of the citizens. Whereas if we look into the political context, the emergency which was imposed in 1975 is one of the key event जिसने पूरे politics को change कर दिया था. And आज नहीं, कल नहीं, even after 10 years when you will be telling this to someone else, to your kids, तब भी आपको जो है this portion would always have an interesting way. क्योंकि over the period the things are manipulated, क्योंकि हम नहीं जानते उस वक्त में क्या हुआ था, लेकिन there are so many negative aspects जिसकी वजह से political scenario, the shape of Indian politics, political parties, emergence of a coalition era, ये सब कुछ जो था इसके साथ में शुरू हुआ था. So now what happened? That emergency was imposed. Exactly during the emergency क्या क्या चीजें हुई थी, उसका असर क्या हुआ था, and what was a lesson that we could learn. That is the entire chapter. And this emergency was imposed in June 1975. अभी इसका मतलब कि there was a complete era also अभी हुआ था. That's a very, we can call it as a black period of our country. The emergency ended as it had begun, but it resulted in the defeat of Congress. And it is very obvious क्योंकि emergency जो था उसने common लोगों को जो है हिलाकर रख दिया था. So now what happened? Let us come. So I'll be taking this chapter, I'll be reading it and I'll be explaining it. You can just go through. And जहाँ important point होगा, I tell you, you can all mark it in your physical book, which now I trust कि अब आप लोगों ने खोलना शुरू कर दिया होगा, since you are now very near to your boards. We already know that Indira Gandhi जो थी, she was called as the Iron Woman. She was very popular. In fact, after the war between Pakistan and Bangladesh, India ने जब intervene किया था, तो she had actually gained a popularity. She was very famous for her statesmanship. But at the same time, 67 के बाद there were internal disputes in Congress, जिसकी वजह से कांग्रेस आपका पोलराइज हो गया, दो तरीके के कांग्रेस हो गए. Then this period also witnessed a very big, what you can say, conflict between government and judiciary. मतलब नॉर्मली गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी पर कभी भी जो है आवाज नहीं उठाती, बट दैट पर्टिकुलर पीरियड जुडिशरी जो थी उसने भी गवर्नमेंट पे सवाल किया और गवर्नमेंट ने जुडिशरी पे. The Supreme Court found many initiatives of the government to be violative of constitution. Or the Congress party took the position that this stance of the court was against principles of democracy and parliamentary supremacy. उनका मानना था पार्लियामेंट सुप्रीम है,
वेरस कोर्ट का मानना है कि कोर्ट हैज द पावर टू इंटरफेयर इनटू द पॉलिटिकल मैटर्स अगर उनको लगता है दैट दीज डिसीजंस आर इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज. The Congress also analyzed that the court was a conservative institution और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने में हमें मदद नहीं करता. द पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस, उनको लगा पॉलिटिक्स नाउ वाज अबाउट इंदिरा गांधी, इट वाज नॉट अबाउट रूलिंग. एंड ये एक और बड़ी चीज थी कि द स्प्लिट वाज देयर. सो सबसे ये मतलब मेनली आपका बैकड्रॉप था उस वक्त में व्हाट वाज हैपनिंग. नाउ कांग्रेस जो थी, इट हैड गिवन द वेरी फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ, which is very very famous, though the economic condition did not in fact improve. Secondly, the Bangladesh crisis, economically, I'm not talking about the popularity, that had also added to the economic condition of our country. Refugees, और वॉर में इंडिया के इंटरवेंशन की वजह से यूएस ने इंडिया को सपोर्ट करने से, एड देने से मना कर दिया था. लाइक अभी भी हुआ था व्हेन ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर, व्हेन इंडिया अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो यूएस ने कहा था कि दे वुड बी सैंक्शनिंग अगेंस्ट. तो द यूएस वाज अगेंस्ट. ऑयल प्राइजेस इंक्रीज हो रहे थे, तो दैट वाज आल्सो कि हमारे जो कमोडिटीज थे वो भी प्राइजेस हमारे ज्यादा होते रहे, दैट वाज इन्फ्लेशन. एट दैट पीरियड, अभी तो हमारा फिर भी बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज वेरी लो. द सेकेंड जो हमारे जो वो थे 5 year प्लानिंग थे, दे वर ऑल्सो फेल्ड एक्चुअल में. अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो सैलरी होती है उसको रोक दिया. गवर्नमेंट के लोग भी उनके अगेंस्ट हो गए. एक तरफ रूरल में मॉनसून फेल, दूसरी तरफ आपका इन्फ्लेशन, तीसरी तरफ आपका जो है रेफ्यूजी, चौथी तरफ आपका लोगों का जो है सैलरी भी रोक रखा था. तो देयर वाज अ जनरल डिससैटिस्फैक्शन. ये कांग्रेस का उस वक्त में हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन था. तो जो नॉन कांग्रेस थे, दे वांटेड टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट. स्टूडेंट्स जो थे, द स्टूडेंट्स मूवमेंट्स होते हैं जो कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, दे वर ऑल्सो बिकमिंग वेरी एक्टिव. एंड दूसरा आपके मार्क्सिस्ट ग्रुप, दे वर ऑल्सो इंक्रीजिंग. Now there was one thing which was now called as Naxalist. And Naxalists जो थे, though they are not exactly what we call as terrorists, but they take arms in their hands. तो ये भी आपका ज्यादा हो रहा था. इस वक्त में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, हाउ इट वाज, मतलब हाउ इट शेप्ड. स्टूडेंट्स के आपके प्रोटेस्ट से दो मतलब कि बेसिक, उसमें एक गुजरात में था और एक बिहार में था. और दोनों जगह पर बेसिक आपका जो लड़ाई थी वो थी इन्फ्लेशन को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, राइस ऑफ द प्राइजेस उनको लेकर. नाउ दी स्टूडेंट्स जो ग्रुप थे, दे वर सपोर्टेड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज. तो जब ऑपोजिशन पार्टी ने, दैट इज इन गुजरात, स्टार्ट किया तो वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल हो गया. दे वांटेड दैट द कांग्रेस गवर्नमेंट एट दैट पीरियड रूलिंग, उसको डिसॉल्व करना चाहिए. एंड अनलेस अंटिल देयर इज नो फ्रेश इलेक्शन, मोरारजी देसाई विल गो फॉर हंगर टू स्ट्राइक. तो असेंबली इलेक्शंस हुए और हुआ वही, कांग्रेस वाज डिफीटेड. दिस वाज द फर्स्ट केस इन गुजरात. द सेकेंड केस वॉज इन बिहार. और बिहार के अंदर क्या था,
जयप्रकाश नारायण जो कि अब पॉलिटिक्स में नहीं थे, नाउ ही जस्ट यूज्ड टू गिव हिज कंसल्टेंट्स, सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट किया इफ द मूवमेंट बिकम्स नॉन वायलेंट. सो ही सपोर्टेड दिस, और उन्होंने भी बिहार के अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसको डिसमिस करने के लिए बोला, बिकॉज वहां पर भी सेम था. एंड देयर बंद गहरा मतलब कि घेराव स्ट्राइक वगैरह था, बट गवर्नमेंट जो है इट वाज नॉट रिजाइनिंग. दिस वाज द वन मतलब की प्रॉब्लम. द मूवमेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने अब इस मूवमेंट को जो है अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में किया. ये एक तरफ मूवमेंट चल रहा था, दूसरी तरफ रेलवे का मूवमेंट चल रहा था. दैट वाज डन बाय जॉर्ज फर्नांडिस. उनकी डेथ अभी 2 साल पहले ही हुई थी. ही वॉज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ कांग्रेस. तो एक तरफ नॉर्मल लोगों की, स्टूडेंट्स की, दूसरी तरफ रेलवे. And he was also supported by the non-Congress opposition party like Bharatiya Jan Sangh. And they all wanted Indira Gandhi should be removed and Jay Prakash Narayan should be there. एक तरफ वहां मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ आपका जयप्रकाश नारायण. So both Gujarat and Bihar agitation जो थे, they were more like we can say anti-Congress. और उसको लग रहा था इंदिरा गांधी को कि इट वॉज नॉट पॉलिटिकल बट इट वॉज मोर एज अ पर्सनल अटैक. नाउ what was the railway strike? The railway strike was about the employees, उनके लिए जो उनका atmosphere, labor rights, and it was done by George Fernandez. But this strike जो था that was actually withdraw हो गया था without any मतलब कि there was no agreement and all. But हाँ, उस पीरियड के दौरान those days आपका रेलवे जो था वो बिल्कुल डिसरप्ट हो गया था. एंड दीज ऑल वर द अनरेस्ट पीरियड ऑफ 1974. मतलब आप कह सकते हो कि फ्रॉम पंजाब से लेकर नीचे तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम रह रही थी. एंड यही पीरियड था when the central government also had the judiciary difference with the judiciary. अब पार्लियामेंट का मानना था that पार्लियामेंट कैन अब्रिज द फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जुडिशियल रिव्यू के बिना द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द राइट्स आर curtailed. पार्लियामेंट ने अमेंड किया, उन्होंने कहा वो लोग कर सकते हैं if they want to give effect to directive principles of state policy. So ये जो था दैट बिकेम अ कॉन्फ्लिक्ट. एंड दैट वाज जिसमें हमने पढ़ा था इन 11th केस ऑफ नंदा भारती केस, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स. और इसकी वजह से क्या हुआ था? द फर्स्ट वाज इमीडिएटली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन केशव नंदा भारती केस, चीफ जस्टिस को आना था. एज पर द प्रैक्टिस हमारे जो चीफ जस्टिस होते हैं, he is appointed by the President of India in concern with the Prime Minister and Cabinet Minister. बट नॉर्मली जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको हम चीफ जस्टिस का पोस्ट देते हैं. दैट इज अ रूल. बट गवर्नमेंट ने क्या किया? जो 3 सीनियर जजेस थे उनको छोड़कर जो जूनियर जज था जस्टिस एन रे, उनको अपॉइंट कर दिया. एंड दिस वाज एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल.
एंड दस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है आपके एकदम रैपिड, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ज्यादा इंटरफेयर करने लगी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को ही हटा दिया, मतलब कि जज को ही अपना इंसान उसमें डाल दिया. दिस वॉज मोर लाइक अ ब्यूरोक्रेसी एंड दैट वॉज कि हाई कोर्ट जो था, मतलब कहीं ना कहीं हर जगह पर जो था, देयर वॉज एन अनरेस्ट विच सेड दैट इंदिरा गांधी सिलेक्शन वॉज ऑल्सो इन, मतलब ये भी एक और प्रॉब्लम थी. ये कैसे हुआ था? इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन इनवैलिड था ये हुआ था इलाहाबाद कोर्ट में. दैट वॉज बिकॉज किसी ने, मतलब वहां पर जो है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जो थे, ही सेड दैट, एक आदमी था जिसका नाम था राज नारायण, जिसने कंटेस्ट इलेक्शन किया था, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जो है शी हैड मिस यूज द गवर्नमेंट प्रीमिसेस एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, शी हैड वायोलेटेड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड दैट इज वाई जब वो पिटिशन बाहर आया तो उनका जो कैंडिडेचर है उसको खत्म कर दिया गया. देन उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्शियल स्टे दिया. उन्होंने बोला कि शी कैन रिमेन एन एमपी बट शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी प्रोसीडिंग्स. दस अगेन अनदर थिंग वेंट अगेंस्ट इंदिरा गांधी. तो ये सारी चीजें जो थी, दीज ऑल वर एक्चुअली अगेंस्ट इंदिरा गांधी. तो एक तरफ से कह सकते हो कि दैट वाज मोर लाइक अ पर्सनल अटैक, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो उनके लिए हो रहा था. नाउ इसके साथ हुआ बिहार में, और इसका नाम क्या है, गुजरात में था. सो people now started pressurizing for the resignation of the prime minister, and it was supposed to be a massive demonstration in Delhi's Ramlila ground. उन्होंने कहा कि there should be a nationwide सत्याग्रह, and he also said nobody should support इंदिरा गांधी. और ये जो था that was more against इंदिरा गांधी. एंड ये इसका रिस्पॉन्स जो है इंदिरा गांधी ने बहुत ही ब्रूटली दिया बाय इम्पोजिंग स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975. और उनका ग्राउंड था, मतलब उनका जो मानना था वो था दैट इन कंट्री देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस and according to article 352 emergency can be invoked under this provision. Now technically क्या होता है, टेक्निकली अगर हम देखें तो विद इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम स्पेशल पावर्स, और वो सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता, हम लोगों के पावर्स खत्म हो जाते. कैसे? फर्स्ट, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा खत्म. फेडरल का मतलब स्टेट्स को कोई पावर नहीं है. All the powers are concentrated with the center, right? Secondly, the government can restrict the fundamental rights, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन. तो ये गवर्नमेंट को जो है they get the privilege. And what did the prime minister do is she just imposed emergency by recommending it to President Fakhruddin Ali Ahmed. ये याद रखना because it comes in the paper. और रात को जस्ट मिडनाइट में सारे न्यूज़पेपर के ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया गया. Many of the political leaders they were arrested on the preventive detention ground. और जस्ट उसने ये कैबिनेट को इन्फॉर्म किया मॉर्निंग 6 बजे. जो भी उसने किया, शी टुक इट ऑन पर्सनल ग्राउंड, शी डिड जस्ट इन्फॉर्म्ड इट इन द मॉर्निंग. दैट वाज हाउ इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड, विच यू कैन ऑल्सो से दैट अगर हम देखते भी हैं तो हमें समझ आ जाता है कि इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. बिकॉज टू इम्पोज एनीथिंग we need a proper machinery, we need a proper procedure. आप यूं ही कुछ नहीं कर सकते हो.
आज भी अगर कंट्री के अंदर कुछ होता है तो वी नीड टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, द लीडर्स वर इन जेल, पॉलिटिकल सिचुएशन टेंस हो गया, गवर्नमेंट ने जो प्रेस का फ्रीडम है, जो प्रेस है वो अपनी बात बताता, उसको बंद कर दिया, न्यूज़पेपर को बोला गया दैट एवरीथिंग विल बी टेकन परमिशन बिफोर पब्लिशिंग, यानी कि सेंसॉरशिप हो गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो बीजेपी को सपोर्ट करता था, जमायत इस्लामी, इन गवर्नमेंट ने इन एजेंसीज को बैन कर दिया, पब्लिक एजिटेशन बैन कर दिया, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे लाइक राइट्स ऑफ सिटीजन्स टू मूव टू द कोर्ट उसको भी बैन कर दिया, एंड द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, this entire paragraph had come in the paper. What did they do? They were just arrested even though they did not commit any offense, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि उनका मानना था कि इनकी वजह से दंगे फसाद हो सकते हैं, and they made large scale arrest. Arrested political workers could not challenge their arrest through habeas corpus petitions. Normally we can do it, but उनको मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि there is no even necessary to inform them कि उन्हें क्यों अरेस्ट करा जा रहा। Several high courts gave judgment that even after emergency the courts could entertain a writ of habeas, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने सारे लिबर्टी, सारे राइट्स जो है वो खत्म कर दिया। इट जस्ट क्लोज द डोर्स ऑफ द जुडिशरी फॉर द सिटीजन्स, एंड इट इज सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज ऑफ पीपल तभी हटा सकते हो जैसे अभी वॉर चल रहा है यूक्रेन में, दैट इज समथिंग एंड हो सकता है कि वॉर के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो, चोरी चकारी, उस वक्त में द गवर्नमेंट कैन यूज दीज काइंड्स ऑफ सिस्टम, बट नॉट इन दिस सिचुएशन। देयर वर मेनी एक्ट्स, मेनी पॉलिटिकल लीडर्स जो कि अरेस्ट नहीं हुए थे वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन जैसे बड़े बड़े जो मतलब कि उस वक्त के न्यूज़पेपर्स थे, उनका जो एडिटोरियल कॉलम था उसको वो ब्लैंक छोड़ते थे। कुछ कंपनीज ने अपना बंद ही कर दिया। मेनी जर्नलिस्ट वर मतलब कि अरेस्टेड। कई लोगों ने जो है बाईपास किया सेंसरशिप को, जिनके पद्म भूषण पद्म विभूषण वगैरह मिला था, दे जस्ट रिटर्न्ड, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। The parliament also brought in many new changes to the constitution. मतलब आप that was something, एक तो बहुत अच्छा था, जैसे हमारे राइट्स और ड्यूटीज आ गए थे। Now she said इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वेदर यू आर द प्राइम मिनिस्टर और यू आर एन ऑर्डिनरी पर्सन, यू आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। लेकिन मैडम ने चेंज किया। द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड। मैंने बताया था आपको 42nd अमेंडमेंट इज हमारा जो मतलब कि हमारे कुछ राइट्स ड्यूटीज भी पास हुए। दैट इज अ राइट, हमारे जो ड्यूटीज थे दैट वर इंक्लूडेड। देन शी सेड लेजिस्लेचर जो हमारा भी 5 years का है, मतलब नॉर्मली हमारा जो इलेक्शन होता है वो 5 years का होता है, दैट कैन बी ऑल्सो फॉर 6 years। दस शी जो इलेक्शंस हमारे 71 में हो रहे थे तो 71 के बाद 76 में होने थे, तो उसने कहा कि वो 77 या 78 में हो सकते। शी चेंज द एंटायर नेचर, which we can say that it is really unconstitutional. So that is why we say emergency is one of the most controversial इसलिए क्योंकि whether it was necessary or not. Why do we call it as controversial? Because was it necessary? One reason is there are differing views about need to declare. Another is using the power given by the constitution.
द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड, यानी कि उन्होंने मिसयूज किया। इस पूरे इमरजेंसी को जो है इंक्वायरी बिठाई गई थी, मतलब जब बाद में 77 में जब इलेक्शंस हुए थे, जनता पार्टी आई थी, तो इलेक्शन मतलब की कमेटी बिठाई गई थी और उस कमीशन का नाम था शाह कमीशन। एंड उनका मानना है कि जो शाह कमीशन का मानना है, देयर वर मेनी एक्सेसेस। ये पेपर में एक बार आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेसेस? एक्सेसेस का मतलब होता है मिस यूजिंग, मिस यूज। This is the one. In May 1977, the Janata Party government appointed a commission headed by Justice J.C. Shah, who was a retired justice. उन्होंने सारे allegations पे देखा था, and the commission examined various kinds of evidence and called scores of witnesses to give testimonies, जिसमें इंदिरा गांधी को भी बोला गया था, but she did not answer. The government India accepted all the finding, observation and recommendation in two interim reports and third and final of Shah Commission. And it was said that many of the provisions during emergency were non-required. अब ये आपके पेपर में आता है कि was emergency and ज़रूरी था. The constitution says if there is an internal disturbance, you can. अब इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है बेटा? इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब हो जाता है अटैक्स, जो लोग हैं दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है अनरेस्ट है, दे आर बिकमिंग वायलेंट. प्रोटेस्टिंग यूजिंग अ प्रॉपर मोड इज नॉट वायलेंस. The government argued that in a democracy, the opposition parties must allow elected ruling party to govern according to its policies. And again अगर वो लोग एजिटेट, प्रोटेस्ट, कलेक्टिव एक्शन करते हैं तो वो डेमोक्रेसी के लिए बुरा है. सपोर्टर्स ने ये भी बोला दैट यू कैन नॉट कॉन्टिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट बिकॉज दैट बिकम्स इंस्टेबिलिटी. मतलब उनका मानना था कि उन्होंने इमरजेंसी को इसलिए डिक्लेयर किया था क्योंकि द ऑपोजिशन वॉज नॉट अलाउिंग द गवर्नमेंट टू रूल अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज. अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी, मतलब जो उन्होंने लिखा शाह कमीशन को, उनका मानना था कि गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव प्रोग्राम, वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने से ये लोग रोक रहे थे, बार बार लोगों को उकसा रहे थे. सीपीआई वगैरह ने बोला दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, दैट इज व्हाई इट वाज राइट. मतलब ये सही हुआ क्योंकि सीपीआई हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करता. The CPI felt agitation led by JP were mainly by the middle class who were opposed to the radical policies of Congress. वो कहते हैं कि after the emergency that its assessment was mistaken and that it was an error to have supported the emergency. Later on they even regretted. On the other hand, जो critics हैं उनका मानना है that in democracy people have the right to publicly protest against the government. And they were all peaceful, non-violent. It was not an anti-national activity. जितने लोगों को डिटेन किया था, nobody had any case. So this is nothing like law and order, और कोई law and order के लिए हमें कोई नोटिस नहीं भेजा गया था. We have not, अगर हमने even overstep भी किया था तो they have the power. उसके लिए इमरजेंसी डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं थी, उसके लिए डेमोक्रेसी को सस्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी. इट इज ओनली बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर फेल्ट इट इज अ पर्सनल अटैक, इसीलिए उसने किया. शी हैड मिस यूज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सो मतलब कि द सपोर्टर्स ऑफ कांग्रेस हैव कॉल्ड इट एज पॉजिटिव, whereas जो opposition say they have called it as a wrong step. If you talk to your parents, you will find out that what was there, because my father used to tell emergency was the worst period in our country. Though he always supported Congress for many years, later on he started supporting BJP. But उनका मानना था कि इंदिरा गांधी was inefficient
इवन दो शी वॉज हाउस अरेस्ट, लेकिन दैट वॉज नॉट मतलब कि दैट वॉज नॉट एक्चुअली नीडेड. नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब एग्जैक्टली लोगों के साथ क्या हो. मैंने आपको बताया दैट गवर्नमेंट जो है उन्होंने सारे के सारे मतलब कि जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर दिया था. द गवर्नमेंट सेड दे हैव यूज्ड देयर पावर टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर. दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट द प्रो वेलफेयर. इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट प्रोग्राम किया था. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल वेजेस, इरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, प्रिवी पर्स. उनका मानना था कि डिक्लेयर जो इमरजेंसी था उसको डिक्लेयर करके शी हैड टेकन द वेलफेयर स्टेप्स. शुरू शुरू में तो ऑल द मतलब कि मिडिल क्लास जो थे दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको लग रहा था गवर्नमेंट ऑफिस के जो लोग हैं दे ऑलवेज एंजॉय, तो अब उनको थोड़ा डिसिप्लिन मिल रहा है. लेकिन लेटर ऑन जो आपके धीरे धीरे यही लोग जो थे दे वर टर्निंग अगेंस्ट. उनका मानना था कि प्रोमिसेस वर अनफुलफिल्ड. देयर वर थिंग्स विच शुड नॉट हैव हैपेंड, जैसे कि आपके पूरे का पूरा जो झुग्गी झोंपड़ी का पूरा था इन यमुना नदी के पास उसको जला दिया गया. तुर्कमान गेट पर जो है जबरदस्ती जो है लोगों को पकड़कर उनको स्टेरिलाइज किया गया. मतलब देयर वर मेनी स्टेप्स दैट वर टेकन which should not have been taken. मतलब उसमें कहा जाता है कि संजय गांधी did not have any official position but he used the power. There were many opposition leaders who were arrested. Over 1,11,000 people. Many restrictions were put. एंड दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन का कहना है कि उनके पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया था. इट वॉज जस्ट अ वर्बल ऑर्डर. और कभी भी आप किसी ऑफिस पे काम करते हो तो हमेशा आपके पास फॉर्मल ऑर्डर आने चाहिए. सो उनका मानना है कि दिस वॉज नॉट द राइट मैनर. जैसे मैंने आपको बताया दैट देयर वर मेनी एलिगेशन. संजय गांधी के मतलब जो उनका बेटा था ही हैड इंटरफेयर्ड. There were many torture, many custodial deaths also during this period. This is one of the incident. P. Rajan करके a final year student of Calicut Engineering College जिसको उठा लिया गया था. It is said that मतलब कि how he died nobody knows. और उसके father जो थे he could not even मतलब कि अपील बिकॉज आपके जो फ्रीडम था वो सॉरी आपका जो था जो हमारे राइट से वो कर्टेल कर दिए गए थे. सो नाउ व्हाट वी लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी लेसन. ये आपके पेपर में दिस कैन कम एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. दिस हमारा स्ट्रेंथ भी हमारे वीकनेस भी. कुछ लोगों का मानना था कि इवन दो आपका मतलब इंडिया में जो है डेमोक्रेसी थी एंड अकॉर्डिंग टू पीपल हो सकता है डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ. लाइक इन पाकिस्तान और बांग्लादेश military rule had brought down democracy. Secondly, there were some ambiguities regarding emergency provision. मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है इंटरनल, लेकिन ये इंटरनल क्या है ये नहीं लिखा है. तो हमें समझ आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक गलती है. मतलब व्हाट कैन बी कॉल्ड एज इंटरनल डिस्टर्बेंस. भाई अगर हम गोलाबारी लेकर गवर्नमेंट पे हत्या मतलब कि कर रहे हैं तो वो तो इंटरनल है. And it is necessary that the advice to president to proclaim should be given in writing by council of ministers. ये लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. अब इंदिरा गांधी ने जस्ट बोला था एंड हो गया था. तो दिस केम इन फ्रंट ऑफ अस. हमें ये लेसन पता लगा दैट वी हैव टू बी वेरी श्योर. Thirdly, emergency made everyone more aware of civil liberties. That's very you can say one of the most important. हम लोगों को अभी भी अपनी सिविल लिबर्टीज इतने नहीं पता होते, बट व्हेन दे आर स्नैश्ड वी कम टू नो. Many civil liberties organizations came up.
मतलब अभी तक हम जिन इश्यूज को हमने ग्रैपल नहीं किया था, धीरे 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 वो सब हमारे सामने आने लगा. दूसरा, the actual implementation of emergency rule took place through the police and administration. पुलिस को बोल दिया गया था, that means police was not having any power. They are just political puppets. और ये तो अभी भी है. जो भी गवर्नमेंट आता है उनके नीचे जो पुलिस होती है, they have to work according to them. There are so many rules and regulations actually we don't follow. 11th स्टैंडर्ड में भी आई रिमेंबर देयर वर मेनी चैप्टर्स जिसके अंदर बताते हैं कि जो आपके मतलब कि देयर आर पुलिस हु आर अपॉइंटेड थ्रू द कमीशन एंड देन द स्टेट आल्सो हैज़ इट्स ओन. लेकिन जो लोग आपके हायर पोजीशन में आते हैं उनका कंट्रोल पूरा यूनियन से होता है. सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली यूनियन इज हैविंग मोर पावर. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर this politics after this emergency? Definitely 74-75 is said to be one of the most what we call as worst period of India. Garibi Hatao was contrast by Indira Hatao. लेकिन बाद में जो एक और बहुत ही पावरफुल मतलब कि स्लोगन था, that was save democracy. दैट इज 77 में जब इमरजेंसी हटा, उसके बाद जब 77 में इलेक्शंस हुए तो ऑल द लीडर्स वर रिलीज फ्रॉम द जेल और इलेक्शंस जो थे दे वर हेल्ड इन मार्च 77. तो ऑपोजिशन के पास टाइम तो था नहीं. मैक्सिमम आपके लीडर्स जो थे दे वर इन द बट नाउ दे ऑल केम formed a new party known as Janata Party, which was headed by Jai Prakash Narayan. Even those people inside Congress also joined them. And दूसरा एक और हुआ, some other Congress leaders also came out and formed a separate party बाबू जगजीवन राम जी के साथ में, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, बट लास्ट में वो जनता पार्टी के साथ ही हो गया था. एंड दस जनता पार्टी ने अपना रेफरेंडम बनाया था, उन्होंने बनाया था सेव डेमोक्रेसी, बिकॉज दे वर ऑल एंग्विश्ड ऑन द अरेस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. जयप्रकाश नारायण बिकेम अ वेरी पॉपुलर सिंबल ऑल्सो. और उनको ये था कि दे वुड बी टुगेदर एंड दे वुड फाइट. तो कांग्रेस हार गई एंड डेफिनेटली जनता पार्टी, और ये देखो ये जो फोटो बनी हुई है, कांग्रेस नीचे गिर गई. द जनता पार्टी एंड इट्स allies won 330 out of 540. मीन्स इन नॉर्थ इंडिया इट इज सेड दैट अगर आप यहाँ से एक ट्रेन पकड़ते हो तो बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कहीं पर भी आपका नहीं था. एंड दे कुड ओनली विन इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. Even Indira Gandhi herself was defeated from the constituency. But yes, Maharashtra, Gujarat, Odisha वगैरह and then some of the southern state, क्योंकि southern state में ना northern politics बहुत ज़्यादा हमेशा नहीं रहा है. जो emergency का भी impact था that was more in northern states. So that is why the middle caste from North India were beginning to move away from Congress, and the Janata Party became a platform for many of these sections to come together. But a problem क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी कि अभी जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम तब भी थी. राइट नाउ बीजेपी इज अ सिस्टम, बट बीजेपी हैज सर्टेन मैनिफेस्टोज. ऑन द अदर हैंड वी हैव स्ट्रॉन्ग पार्टीज, लेकिन उनका जो एक मेन मुद्दा है ना वो ये होता है कि बीजेपी को या फिर टारगेट कर दो एक आदमी को, एंड दैट इज व्हाई दे आर अनस्टेबल. द सेम थिंग हैपेंड एट दैट टाइम. द जनता पार्टी केम इनटू पावर. देयर वाज नाउ सबसे पहला प्रॉब्लम था कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाए. दैट इज मोरारजी देसाई, जो कि जिन्होंने सपोर्ट किया था उस वक्त में. देन this can come in your map also.
and Charan Singh, who was the leader of Bharatiya Lok Dal, a farmer, Jagjeevan Ram. Eventually, Morarji Desai became the prime minister. लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या थी कि बाकी दोनों जो थे, they were not happy. So the opposition to emergency could keep Janata Party together only for a while. Reason? The party lacked direction, leadership and a common program. वो तो सिर्फ इसलिए साथ आए थे ना कि उन्हें कांग्रेस को हराना था, वो इसलिए थोड़ी साथ आए थे कि उनको कुछ नया करना था. The Janata Party split and the government, which was led by Morarji Desai, lost its support in just 18 months. उसके बाद चरण सिंह जी बने. बट कांग्रेस पार्टी लेट, मतलब चरण सिंह को सपोर्ट किया कांग्रेस ने, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उनको अपना विड्रॉ सपोर्ट कर दिया, फिर वो गवर्नमेंट भी चली गई. नाउ फ्रेश इलेक्शन हुआ एंड वंस अगेन इंदिरा गांधी केम इनटू पावर. See, if you don't have what we call as clear direction, then no political party can remain in power. People can vote because you are giving a very good speech, but जब तक आप काम नहीं करोगे ना, nothing will happen. So, but yes, after 77 जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, जो कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था. बिकॉज आफ्टर दैट देयर वॉज डेफिनेटली, कांग्रेस आया तो था लेकिन दे वर नॉट दैट मच पावरफुल. मतलब जैसे पहले उनको क्लियर मेजॉरिटी मिलती थी, वो नहीं था. दे वर नाउ शेडिंग दैट कैरेक्टर एज एन अम्ब्रेला पार्टी. नाउ दे हैड ओनली पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ओनली प्रो पुअर पार्टी, not anything to the industrialists, not to the middle class. Or then there was one strong leader, Indira Gandhi. और जो oppositions था उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि they were more like non-congressism. Now after 1977, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट बुक में, कि वी ऑल्सो हैड द बैकवर्ड कास्ट, जो मैंने लास्ट में पढ़ा था आपको, लास्ट क्लास में भी BSP वगैरह आए थे. सो देयर वर मेनी अदर स्लोली एंड स्टेडीली नॉन कांग्रेस, मतलब कि बैकवर्ड क्लास जो थे वो भी स्टार्ट कर रहे थे आना. एंड धीरे 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 जो है दीज इश्यूज बिकेम, विच वी कैन से द मंडल कमीशन, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज द मंडल कमीशन अबाउट, द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन, दैट ऑल्सो चेंज्ड द नेचर. द इमरजेंसी एंड इट्स पीरियड कैन बी सेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पीरियड, बिकॉज वो स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था when there was a controversy between parliament and judiciary. It is also called as political crisis because a party in power had absolute majority and the leader decided to suspend the democratic process. Well, why it is called as constitutional, why it is called as political? क्योंकि the leader was taking undue advantage of her power. और कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की गई थी विच आर नॉट सपोज टू बी डन बाय द पार्लियामेंट्री. अगर पार्लियामेंट करता भी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक हथियार होता है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. The makers of India's constitution trusted that all parties would basically abide even during the emergency when the government would use extraordinary powers. Its use should be within the norms of rule of law. This expectation led to wide and open-ended powers given to government in times of emergency. मतलब कहा जा सकता है कि इलेक्शंस के इमरजेंसी के दौरान the powers were abused. Abused मतलब they were misused. So this means political crisis was more serious than constitutional crisis. If it comes, आपका ये पूरा पैराग्राफ आएगा. दूसरा, the role and extent of mass protest. डेमोक्रेसी में जहाँ हमें राइट्स मिलता है वहाँ हमारा सबसे पहला एक होता है that people can protest. The democracy is based on spontaneous popular participation.
and this tension may be attributed to the inability of the party system to incorporate the aspiration. हम शोर क्यों मचाएंगे बताओ, अगर गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है तो why should we make, why should we protest? So this was a question, why people will protest if the government is taking proper steps. But parliamentary democracy में mass protest is allowed. It should not go to violence. You should not misuse the power कि आपको freedom of speech मिला तो आप hatred करो. That you are not allowed. But if it is within the limit, within the parameters, then definitely you can do it. So these were the questions which came up. And yes, over the period we have come up with many solutions, but till date emergency is said to be one of the black day. June 25th को हम black day बोलते हैं because that had actually changed the entire scenario of political system. कि तब तक था आपका कांग्रेस सिस्टम, उसके बाद आपका कांग्रेस सिस्टम एक कांग्रेस बनकर रह गया. In the next class we will be doing the reference material, that is second resurgence हमारा हो चुका. उसके बाद जो जयप्रकाश नारायण वाला हो चुका है, we will be doing Deen Dayal Upadhyay, Integral Humanism, then Democratic Upsurges from the reference material. With this, we'll be completing the chapter. So 2 chapters from the second book, which were very important, I have completed it with you.